Hello, dear student. Welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So it's our lecture number 4, in which we will discuss about the Compton effect. This is our chapter number 1st, Origin of Quantum Mechanics, in which the point Compton effect will discuss. So myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So, as you know, in our previous lecture, we learned about the photoelectric effect. And we know that we cannot explain the photoelectric effect with the classical electromagnetic theory or wave theory of light. We saw in the last lecture how the wave theory of light fails to explain the experimental result in the photoelectric effect. So we need the concept of photon to explain this phenomena completely. Einstein used the Planck's quantum theory, and the light radiation is treated as a particles, and this particle he says as a photon having energy h nu, and this photon which is incident on this metal surface, and this photon is absorbed by the atoms or electrons inside the metal surface, and the energy of the photon is utilized into the two ways: to eject the electron from the metal surface, the energy which is used to eject the electron from the metal surface, and the remaining amount of energy is used to increase the kinetic energy of the electron. Okay, so the Einstein used the Planck's quantum theory. E is equals to h nu, energy is directly proportional to the frequency, and is treated as a light radiation as a photon, and he says a photon as a particles having energy is h nu. This photon is inserted on the metal surface, then this photon is completely transfer the energy to the atom. These atoms absorb the energy of the photon, and this energy is utilized into the two ways, so that the electron is ejected from the metal surface. So to explain the result of the satisfactory explanation of the result of the photoelectric effect, so we need the concept of photon. ओके तो देखिए यहाँ तक का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि प्लांक्स की जो थ्योरी है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड और E इज इक्वल टू एच न्यू, उस थ्योरी का पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, और उसी के ऊपर से उनको नोबेल प्राइज मिला था. ओके, तो उसी तरीके से जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन किए गए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, उसी तरीके से दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा बोलेंगे हम, दूसरा इफेक्ट है. दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट. ये कॉम्पटन इफेक्ट भी सेकंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है प्लांक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन का. तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है. हम जनरली अभी स्टडी कर रहे हैं फिलहाल में कि इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन. मैटर का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, और रेडिएशन का मतलब है फोटॉन. फोटॉन और एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में होने वाला इंटरेक्शन को हम अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. कॉम्पटन स्कैटरिंग इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे कॉम्पटन स्कैटरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक स्कैटरिंग.
of light by a free charge particle where the wavelength of scattered light is different from that of the incident radiation. कॉम्पटन स्कैटरिंग है क्या, इस सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं. ये एक्चुअली है कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन. एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन और लाइट रेडिएशन के फोटोन, इनके बीच का कोलिजन. आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि दो, अगर हम मेटल स्पीयर लेते हैं और उसका कोलिजन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक मेटल स्पीयर यहाँ पे स्टडी खड़ा किया है, हैंग करके रखा है, दूसरा मेटल स्पीयर से हम उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं. मतलब एक मेटल स्पीयर को दूसरे मेटल स्पीयर से हम कोलाइड, उसके बीच में कोलिजन कर रहे हैं, या फिर उसको बोलेंगे स्ट्राइक कर रहे हैं. तो क्या होगा कि ये जो पहला वाला मेटल स्पीयर है, दूसरा मेटल स्पीयर है, पहला मेटल स्पीयर जब दूसरे मेटल स्पीयर के ऊपर में जाके इंसिडेंट होगा तो क्या करेगा कि पहले मेटल स्पीयर का मोमेंटम उसको ट्रांसफर करेगा और दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगेंगे. ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है कि जब वो पहला वाला मेटल और दूसरा वाला मेटल बॉल, ये दोनों भी पार्टिकल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन को भी इन्होंने पार्टिकल ही कंसिडर किया है, जिसकी एनर्जी है h न्यू. उनका ऐसा बोलना है कि ये जो फोटोन है जिसकी एनर्जी h न्यू है, और ये जो है ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है. क्या होता है कि जब फोटोन इस एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होने के बाद उनको एक्सपेरिमेंटल ऐसा मिला है कि इंसिडेंट होने के बाद ये फोटोन यहाँ से स्कैटर्ड होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से रिकॉल होगा विथ मोमेंटम p. सो दिस इज कॉल्ड एज रिकॉल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड एज स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन. ऐसा कब हुआ है? जब हमने कंसिडर किया कि लाइट रेडिएशन एज कि जो फोटोन है उसको पार्टिकल कंसिडर किया. तो इसको हमने पार्टिकल कंसिडर किया कि लाइट का जो पार्टिकल है उसको नाम दिया है फोटोन. वो अगर इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे स्कैटरिंग होती है. और स्कैटरिंग कैसी होती है? स्कैटरिंग होती है ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे स्कैटरिंग होती है, और उस स्कैटरिंग को उन्होंने नाम दिया है कॉम्पटन स्कैटरिंग. सो कॉम्पटन स्कैटरिंग इज एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक. यहाँ पे इनइलास्टिक का मतलब होता है कि चेंज इन एनर्जी. दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी लॉस नहीं होती है दो कोलिजन होने के बाद, और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी लॉस होती है. तो ये जो है ये एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है. एनर्जी लॉस हो रही है मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है. हमको पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अगर एनर्जी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ेगी. ऐसा हम यहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ फ्री चार्ज पार्टिकल where the wavelength of scattered light is different from that of incident radiation. अब मान लीजिए ये जो इंसिडेंट रेडिएशन की फोटोन, इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर हम बोलेंगे अदर लैंग्वेज में वेवलेंथ, अगर इसकी वेवलेंथ मान लीजिए कि लैम्बडा है और ये इसके ऊपर में इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है और इसकी वेवलेंथ है, ये सपोज है यहाँ पे लैम्बडा बोला है और इसको बोला है मैंने लैम्बडा डैश. तो क्या होगा कि एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है. मतलब इसकी जो लैम्बडा है और ये लैम्बडा डैश है, इन दोनों में फर्क आता है. मतलब ये हो गया लैम्बडा डैश और ये लैम्बडा. सो लैम्बडा माइनस लैम्बडा, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इज कॉल्ड एज कॉम्पटन शिफ्ट. मतलब सीधा सीधा अभी फिलहाल हमें यहाँ ख्याल में रखना है कि लैम्बडा और लैम्बडा डैश है. लैम्बडा डैश लैम्बडा से बड़ा दिखाई दिया है एक्सपेरिमेंट के अंदर, मतलब यहाँ पे सीधी सीधी एनर्जी लॉस हुई है. तो इस तरीके की जो स्कैटरिंग हुई है, इस स्कैटरिंग को नाम दिया है कॉम्पटन स्कैटरिंग. तो इसका पिक्टोरिकल, जैसे एटम के अंदर का एक पिक्चर है कि जो फोटोन है इसकी एनर्जी E0 है, और यहाँ पे जो फोटोन है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में इंसिडेंट हुए हैं, और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर गया है और ये फोटोन फिर से स्कैटर्ड होकर इधर आया है. ओके, तो इस तरीके के स्कैटरिंग को बोलेंगे हम यहाँ पे कॉम्पटन स्कैटरिंग.
तो एक वीडियो है, वीडियो हम यहाँ पे एनिमेटेड देख लेंगे, उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कोलिजन होता है, स्कैटरिंग होती है. In this video, you see the X-ray photon incident on the target electron, and this is the curved path is the detector path. When the photon of X-ray is incident on the target electron, then incident photon is scattered and their electron is recalled. See in this diagram, the scattered radiation having wavelength is considered as a lambda dash. In this video, you see as a lambda s, and incident is a lambda naught. And this is the graph between wavelength and intensity. ओके, तो वीडियो पर से आप कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है ये समझ ही गए होंगे. तो चलिए अब थोड़ी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. इन 1922 A.H. Compton was the first to measure the photon electron scattering, and in 1927 he was awarded the Nobel Prize for clearly proving that light acts as a wave as well as particles called photon. Note this point, very important for the building blocks of the quantum mechanics. Acts as a wave as well as particle nature. So light radiation acts as a both nature, wave nature as well as particle nature. Okay, so this is a photo of the Compton, और इसी के ऊपर से उसको नोबेल प्राइज मिला है. अब बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट क्या है हम यहाँ पे देखेंगे. When a monochromatic beam of light, when a monochromatic beam of high frequency, we say as a lower wavelength radiation, for example we take as X-ray or gamma rays. You know the electromagnetic spectrum, this is high energy radiation, X-ray and gamma rays. So when a monochromatic beam of high frequency or low wavelength radiation is scattered by a substance, the scattered radiation contain two type of wavelength, one having same wavelength as that of incident radiation, while the other having the wavelength greater than that of incident radiation. This effect is known as Compton effect. देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे बोला था कि ये जो यहाँ पे स्कैटर्ड इंसिडेंट होने के बाद इंसिडेंट वेवलेंथ और ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है इनमें डिफरेंस दिखाई दिया है. मतलब जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो ज़्यादा है इंसिडेंट वेवलेंथ से, दोनों वेवलेंथ में डिफरेंस दिखाई दिया है. तो उसने डेफिनेशन में यही बोला है when a monochromatic beam of light high frequency or lower wavelength is scattered by the substance, the scattered radiation contain two types of wavelength. जो scattered होने के बाद जो दो wavelength मिल रही है वो एक wavelength सेम एज ए इंसिडेंट वेवलेंथ रहेंगी और दूसरी wavelength चेंज हुई, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ की बोलेंगे या लोअर फ्रीक्वेंसी की इसको बोलेंगे. ओके, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट. इसी इफेक्ट को बोलेंगे कॉम्पटन इफेक्ट. सो इज थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज नाउ नोन एज कॉम्पटन स्कैटरिंग derived from classical theory and required the use of special relativity and quantum mechanics, both of which were hardly understood at that time. When first reported his result were controversial, but his work quickly trumped and had powerful effect on the future development of quantum theory. तो क्वांटम थ्योरी के फ्यूचर डेवलपमेंट में एक ही स्टेटमेंट हमको ख्याल में रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट से एक प्रूव है कि लाइट रेडिएशन हैज अ डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एज फोटॉन. ओके, तो चलिए अब डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इसका यहाँ पे देखते हैं. ये कॉम्पटन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है. यहाँ पे देखिए एक्सरे का सोर्स है, यहाँ पे कोलिमिनेटेड स्लिट यहाँ पे लगाई है और यहाँ से एक्सरे निकल रहे हैं, कोलिमिनेट हो रहे हैं, और ये जो ग्राफाइट टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है उसके अंदर में एटम है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, और वो जो एक्सरे रेडिएशन है
उसके अंदर फोटोन है, वो फोटोन इस ग्राफाइट टारगेट के एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में इंसिडेंट होते हैं, और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग में क्या होता है कि फोटोन अलग भागता है, स्कैटर्ड फोटोन, और इलेक्ट्रॉन अलग भागता है। और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसको डिटेक्टर से मेजर किया जाता है, और डिटेक्टर जो है पूरा राउंड शेप में यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके की एक्सरे है, एक्सरे ट्यूब, ग्राफाइट टारगेट, कोलेमिनेटेड स्लिट, सिंगल क्रिस्टल ग्राफाइट के टारगेट है, और ऐसे जो फोटॉन स्कैटर्ड हुए वाले वो आयोनाइजेशन चेंबर में जाते हैं। वो आयोनाइजेशन चेंबर इज नथिंग बट अ डिटेक्टर। सी हियर Compton experiment. Compton scattering occurs in the graphite target on the left. The slit passes X-ray photons scattered at a selected angle. The energy of the scattered photon is measured using Bragg scattering in the crystal on the right. In conjunction with the ionization chamber, the chamber could measure the total energy deposited over the time, not the energy of single scattered photon. Okay. तो ये आयोनाइजेशन चेम्बर का काम है कि जो फोटोन आए हैं वो कितने वेवलेंथ के हैं उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। और उसी के ऊपर से देखिए यहाँ पे in 1923 तो कॉम्पटन पब्लिश अ पेपर इन दिस फिजिकल रिव्यू that explain the X-ray shift by the attributing particle-like momentum to light. The energy of the light contact depend only on the frequency of the light. You know that the energies depend upon the frequency. In his paper, the Compton derived the mathematical relationship between the shift in the wavelength and the scattering angle of X-ray by assuming that each scattered X-ray photon interact with the only one electron. Okay. So Compton derived the mathematical relationship between shift in wavelength. So lambda dash minus lambda, it means that this is a lambda is the original incident wavelength and lambda dash is the scattered wavelength during the collision. तो हमको पता है कि जो लैम्बडा डैश है ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द लैम्बडा, सो दैट द रिलेशन बिकम लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा. दिस इज अ डिफरेंस इन वेवलेंथ इज कॉल्ड एज कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल्स टू h बाय MEC into 1 minus cos theta, and theta is the scattering angle. Theta is as a scattering angle. ये जो एंगल ऐसे अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं या फिर इस इंसिडेंट रेडिएशन के लेंथ में सीधा लेते हैं तो वहाँ से जो एंगल क्रिएट हो रहा है स्कैटरिंग रेडिएशन से और स्कैटर रेडिएशन तक का उसको बोलेंगे हम थीटा. ओके, वेयर लैम्बडा इज द इनिशियल वेवलेंथ, लैम्बडा डैश इज द वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग, h is the Planck's constant, me is the electron rest mass, c is the speed of light and theta is the scattering angle. तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है. इसके ऊपर से कितना मतलब कितनी वेवलेंथ चेंज हुई है वो निकलता है अगर हम यहाँ पे अलग अलग एंगल पे अगर मेजर करते हैं. तो देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया है यहाँ पे. तो ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे कार्बन टारगेट एटम है, ग्राफाइट बोलो कार्बन बोलो, और यहाँ से वो क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल पे वो इंसिडेंट किया गया है और आयनाइजेशन पर मेजर किया गया है. मेजर करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर एंगल जीरो है, मतलब जो स्कैटरिंग एंगल है ये जीरो है, मतलब ये एंगल जीरो है, तो सेम वेवलेंथ रहेगी जो इंसिडेंट वेवलेंथ है. देखिए सेम वेवलेंथ है जो इनकी इंसिडेंट वेवलेंथ है, और यहाँ पे एंगल जीरो है और एक ही पीक दिखाई दे रहा है. अब अगर एंगल में 45 डिग्री से घुमा लूँ, मतलब क्या कि ये जो स्टार्टिंग में जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर रोटेट हो रहा है, वो डिटेक्टर अभी यहाँ पे है, मतलब एंगल जीरो है. अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो एंगल 45 है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो एंगल 90 है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो एंगल 180 है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ डिटेक्टर को तो एंगल 135 है. मतलब अलग अलग एंगल पे जो स्कैटरिंग हुई है वो इस एक्सपेरिमेंट में मेजर किया गया है. ठीक है, तो इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको समझ गई होगी कि अगर मैं ये डिटेक्टर पहले यहाँ पे रखता हूँ तो ये जो स्कैटरिंग का एंगल है जीरो होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो 45 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा. तो इस तरीके से जो स्कैटरिंग एंगल अलग अलग स्कैटरिंग एंगल के ऊपर में हमने ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो उसको मेजर किए. ठीक है, तो उसके ऊपर से क्या रिजल्ट मिला है हम वो देखते हैं आगे. और ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसी के ऊपर से हमको कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ का जो डिफरेंस है स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ इसका डिफरेंट निकाल सकते हैं अलग अलग एंगल के ऊपर से. तो देखिए सबसे पहले जीरो एंगल के ऊपर में ये कि सिंगल पीक मिला है, सिंगल नो शिफ्ट है,
डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसे एंगल 45 डिग्री करते हैं वैसा क्या होगा कि ये जो पीक दिख रहा है पहला वो इंसिडेंट वेवलेंथ का है और ये जो दूसरा पीक है वो स्कैटर्ड वेवलेंथ का है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। दिस इज द लैम्बडा एंड लैम्बडा डैश। सो लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश इज अ शिफ्ट कॉल्ड एज कॉम्पटन शिफ्ट। यहाँ पे देखिए एंगल बढ़ता है, एंगल जैसे बढ़ा है वैसे शिफ्ट भी क्या होगी यहाँ पे बढ़ गई है 90 डिग्री पे। और 135 पे देखिए ये एक पीक से मैंने लाइन खींची है, ये दूसरी पीक से भी लाइन खींची है। दोनों पीक का जो डिस्टेंस है, जो डॉटेड लाइन में का जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे हम कॉम्पटन शिफ्ट। मतलब लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, इन दोनों का डिफरेंस। देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है 0 डिग्री पे जितनी इंसिडेंट वेवलेंथ है उतनी मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वो एंगल को बढ़ा रहे हैं वेवलेंथ ज्यादा ज्यादा होती जा रही है। ओके, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना डिफरेंस ज्यादा आएगा। ठीक है, ख्याल में रखिए, मैं पॉइंट जो बता रहा हूं नोट कीजिए। व्हेन वी मूव द डिटेक्टर विथ द हायर एंगल देन वी गेट a longer wavelength and increasing the difference between the lambda and lambda dash. ओके, तो फाइनल रिजल्ट इसके ऊपर से क्या प्रूफ होता है इस एक्सपेरिमेंट पर से कि प्लांक्स ने बोला था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, मतलब एनर्जी अगर कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी कम होगी, है ना। तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी भी कम हो रही है। कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि जब टारगेट पे इंसिडेंट होगा सीधा जाएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे वो स्कैटर्ड होते गया वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती गई, कम होती गई। ओके, तो जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी वेवलेंथ सॉरी एनर्जी जितनी कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी। देखिए देर आर द टू पीक्स इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। द डिफरेंस बिटवीन द टू पीक वेव इज द कॉम्पटन शिफ्ट। देखिए 0 पे कोई शिफ्ट नहीं थी, यहाँ पे देखिए 45 पे लैम्बडा डैश है, लैम्बडा देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे ये दोनों लाइन का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ओके, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम कॉम्पटन शिफ्ट। तो सेकंड पिक कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये सेकंड पिक वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी वो क्या फाउंड हुआ था पहले कि अगर लाइट के रेडिएशन अगर किसी सब्सटेंस पे इंसिडेंट होते हैं और वहां से वो स्कैटर्ड होता है, उनका ऐसा मानना था कि जिस फ्रीक्वेंसी से उस सब्सटेंस के ऊपर में इंसिडेंट होता है उसी फ्रीक्वेंसी से वो सब्सटेंस वाइब्रेट करता है और जितनी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी को बाहर इमिट करता है। मतलब इनडायरेक्टली जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है उतनी फ्रीक्वेंसी बाहर आती है स्कैटर्ड होके। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाउंड किया गया कि जितनी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ बोलेंगे अपन, जितनी फ्रीक्वेंसी या जितनी वेवलेंथ से रेडिएशन उसके ऊपर में इंसिडेंट हो रहे हैं उससे कम या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वहां से बदल के मिल रही है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की कंसिडर किया जाए, वेवलेंथ कंसिडर किया जाए कि जितनी वेवलेंथ की रेडिएशन उसके ऊपर में इंसिडेंट हो रही है टारगेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, वहां से हमको उस वेवलेंथ ज्यादा मिल रही है, स्कैटर्ड वेवलेंथ ज्यादा मिल रही है, मतलब वहां पे वेवलेंथ का डिफरेंस आया है। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से वहां पे वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके ये अगर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन किया जाए तो ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहां पे स्कैटर्ड हो रहा है। इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस होने के वजह से वहां पे स्कैटरिंग हो रहा है, मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। ओके, तो ये प्लैंक्स थ्योरी का प्रूफ यहाँ पे थियोरेटिकल
उसकी जो थ्योरी थी वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे एकदम फिट बैठ रही है, ठीक है। तो देखिए आखिरी में अगर हम देखें इसको, इसके रिजल्ट को देखें, तो हमको क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन देखना है। ओरिजिन क्या था कि ओरिजिन के हिसाब से अगर हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी प्लांक्स की थ्योरी यूज किया था, और उसने बोला था कि लाइट के रेडिएशन ये पार्टिकल नेचर है, और वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल को फोटोन उसने बोला था। ये एक्सपेरिमेंट में भी सेम प्रूफ हुआ कि जो लाइट के रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। वो पार्टिकल को उसने नाम दिया फोटोन। इसीलिए वहां पे कोलिजन हो रहा है। अगर वो फोटोन पार्टिकल नहीं रहता था तो उस फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन ही नहीं होता था। कोलिजन हो रहा है, फिर फोटोन इधर जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या कि लाइट के जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो लाइट के रेडिएशन कुछ फिनोमिना में लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल, और कुछ फिनोमिना में लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव। जैसे मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो हमको लाइट को वेव नेचर कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देना है, तो लाइट को मुझे पार्टिकल नेचर कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एज फोटोन. It means that light radiation plays as a dual role, wave nature as well as particle nature, and this particle is called as photon having energy E is equals to h nu. ये प्रूव हो चुका है कॉम्पटन इफेक्ट से। कैसे प्रूव किया कॉम्पटन ने? कि उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर में एक्सरे के फोटोन को इंसिडेंट किया। अगर वो पार्टिकल है तो उसके बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन होने से क्या होगा कि उसकी वेवलेंथ चेंज हो जा रही है। इन इलास्टिक कोलिजन वेवलेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या कि एनर्जी लॉस हुई है, और एनर्जी लॉस हुई है इसलिए वेवलेंथ बढ़ी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूफ, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट दस कंस्टिट्यूट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, और आइंस्टाइन ने भी सेम उसी को लेके प्रूव किया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट। फाइनल रिजल्ट कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स द एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। और यहां से सही शुरुआत हुई है सोच की, न्यू ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।